Yes, good morning class. So yesterday we were doing the last additional topics, the new topics which has been added to this chapter, chapter 3rd, that is new centers of power. All topics we have seen yesterday. We had discussed about BRICS and Russia in detail. I hope you remember all the dates, all the important characters and incidents relating to these two incidents. Now today we shall see why India and Israel are also a part of this chapter as a new center of power. Why we are considering these two as one of the new emerging powers economically, socially, in terms of military in the current scenario, that is in the 21st century. 21st century में ये दोनों ही जो nations हैं, क्यों they are called a new centers of power which can challenge the dominance of US. तो आज we will study India and Israel. So we will start with India, and these all the notes are there in the PDF which CBSE has sent. I have sent in the group many times to me, 2 or 3 times. Kuch students who personally also have sent these notes. So today we will discuss about India. Most of the information you know, जैसे Russia की most of the information you know because we had gone through with the chapter that is Russia. Yes sir. ये डी है ना? Yes sir. नेक्स्ट पीरियड में इनको लाइन से भेज देना। Okay sir. Okay. ठीक है, प्लीज। Okay. So about Russia we had seen because during USSR we had already seen how it disintegrated, what were the reasons, what were the consequences. So same in the case of India also, you know a lot of things कि India आज हम न्यूज अगर 21st century में why we are calling it a new center of power. हमने ग्लोबली इन्फ्लुएंस है, इंडिया का बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस इस टाइम पे है अगर हम ग्लोबली बात करें, ठीक है. Let's see. The 21st century India is being seen as the important emerging global power. अगर ग्लोबल का वर्ड यहाँ पे आता है, do you understand what the global? What does the word global mean? Means दुनिया में लोग पहचान रहे हैं किसको, इंडिया को as a new emerging power. इसके कुछ रीजंस होंगे, इंडिया कुछ ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होगा, उनका इकोनॉमिक ग्रोथ इस टाइप से होगा, दैट इज व्हाई इसको हम बोल रहे हैं न्यू सेंटर्स ऑफ पावर. हम अपने इंडिया को खुद नहीं बोल रहे हैं, ग्लोबली कंट्रीज आर रिकॉग्नाइजिंग इंडिया एज द न्यू सेंटर ऑफ पावर. एंड द रीजन क्या हो सकते हैं? लेट्स सी दोस रीजंस. The world is experiencing the power and rise of India in a multi-dimensional way. Actually, the way India is growing, it is not growing in a particular direction कि बस इकोनॉमी इंक्रीज हो रही है और टेक्नोलॉजी ही इंक्रीज हो रही है. It is growing in a multi-dimensional ways. Multi-dimensional means अगर ये इंडिया है, ठीक है, अगर ये इंडिया है तो इसका एक ग्रोथ इस साइड भी है. Multi-dimensional means if you have to explain the rise of India as a new center of power, so we cannot only explain it by कि उसकी इकोनॉमी इंक्रीज हो रही है, उसकी टेक्नोलॉजी या एग्रीकल्चर में इंप्रूवमेंट हुआ है, इंडस्ट्रियलाइजेशन में इंप्रूवमेंट हुआ. इट इज मल्टी डायमेंशनल. इफ यू हैव टू अंडरस्टैंड इंडिया का राइज as a new center of power, you will have to understand all these dimensions to understand why it is called a new center of power. So it is multi-dimensional. जब हम जानने की कोशिश करेंगे why it is called the new emerging power, it is multi-dimensional term याद रखेंगे. Okay. The world is experiencing the power and rise of India in a multi-dimensional way. अब वो कौन से multi-dimensional से? As I told you, the economic, culturally भी, strategic position जो हमारी country की है, strategic position India की, can you see? It is such an interesting position which makes India is one of the important part of the world. इंडिया में देखिए, it is very close to oceans also. यहाँ पे trade through ocean हो सकता है. हिमालय से यहाँ पे बीच में कैसा रीजन है, क्या बोलते हैं इसे? डेक्कन प्लेटू रीजन है. यहाँ पे ये प्लेन्स है, यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता है. हिमालयंस के नीचे जहाँ से प्लेन स्टार्ट होता है, तो हमारा जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है इसमें बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है. बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ हमारे जो है टेरेन्स मिलते हैं. यहाँ पे टेरेन्स बोलते हैं टाइप ऑफ लैंड. तो बहुत एक इसको स्पेशल जगह बनाता है इन टर्म्स ऑफ ट्रेड भी, ठीक है. इसको हमारा इधर से क्या डिफेंस का, हमारा इधर बहुत बड़े बड़े क्या है माउंटेन्स, तो इजीली कोई हमें अटैक कर नहीं सकता. ऑल्दो नेबरिंग कंट्रीज चाइना है तो वहां पे तो हमेशा प्रॉब्लम्स रहेंगी बाउंड्रीज इश्यूज पे लेकर के, बट आउटसाइड पावर कोई हम पे जल्दी से अटैक नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ द ह्यूज रेंज ऑफ हिमालयस इन द नॉर्थ. If you see in the southern side, easily no one can attack. It is totally covered. This is called peninsula, as you must have. जो भी land three sides से water से covered रहता है, that land is called peninsula. So you can see here. कौन-कौन से है? ये कौन सी सी है? यहाँ पे क्या बोलते हैं इसे? Bay of. This is. and नीचे क्या हो गया हमारा? Indian Ocean. So this is a peninsula. इंडिया की लोकेशन है. In the southern side, north में हिमालय है हमारे, ठीक है. So this is a location जो एक important role play करता है इंडिया का to be a new center of power कहीं ना कहीं. Geographical location जो है तो याद रखेंगे, ठीक है. जब इकोनॉमिक, कल्चरल, स्ट्रेटेजिक, कल्चरल वर्ड इसलिए आ रहा है हमारी डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा, बहुत वी आर वेरी रिच इन कल्चरल डाइवर्सिटी.
कितने टाइप के रिलीजन है, हर आप 20 या 50 किलोमीटर में जाओ, यू विल फाइंड सम अदर लैंग्वेज, you will find some other culture या mixed culture मिलेगा एक रीजन में. There are various different type of people speaking different languages, different culture, different festivals. तो वो बहुत रिच बनाता है हमें कल्चर में भी. ठीक है, अब कल्चर में रिच होने का एक रीजन, एक फायदा क्या है, मैंने तुमको बताया, मार्केटिंग. मार्केटिंग में होता है ना, अभी हमारा फेस्टिवल आया, मार्केट में बहुत सारे आर्टिकल्स आ गए, उस आर्टिकल्स की डिमांड होती है, लोग परचेजिंग करते हैं, इकोनॉमी बढ़ रही है, चाहे वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आ रही है, उसका ग्रोथ करने का हमें हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है. ठीक है, फिर पता चला कि जो मुस्लिम्स है उनका कोई फेस्टिवल आ गया, तो हिंदूज में तो हर मंथ कोई ना कोई फेस्टिवल होता रहता है. ठीक है, कभी जनरली व्हेन वी टू स्लीप अटेंटिव, आपको देख के तो मुझे लगेगा एवरीवन वांट्स टू स्लीप. ठीक है, चलो ठीक है, तो कल्चरली भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इंडिया का, तो वी आर न्यू सेंटर, तभी हम उसको क्या बोल रहे हैं, मल्टी डायमेंशनल. इकोनॉमिक कल्चर स्ट्रेटेजिक पोजीशन मैंने आपको बता दी, विद अ पॉपुलेशन, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, विद अ पॉपुलेशन ऑफ 135 करोड़ इज वेरी स्ट्रॉन्ग. तो ये पॉपुलेशन है जो इंडिया की, ये भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है इंडिया को स्ट्रॉन्ग बनाने में एज अ न्यू सेंटर ऑफ पावर. बहुत मैन पावर है इंडिया के पास. ठीक है, टू सपोर्ट इंडिया की इकोनॉमी इन वेरियस फील्ड्स, चाहे हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें, चाहे एग्रीकल्चर की बात करें, किसी भी फील्ड की बात करें, इंडिया हैज अ ह्यूज पॉपुलेशन व्हिच इज आल्सो वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ इंडिया टू बी अ न्यू सेंटर ऑफ पावर. तो हमने इसको क्या टर्म दिया है, मल्टी डायमेंशनल. इंडिया का जो ग्रोथ हो रहा है वो कैसे हो रहा है, मल्टी डायमेंशनल. मिलिट्री में भी उतनी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है हमारी, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी उसी इंक्रीज, उसमें वही इंक्रीज हो रहा है, जो नई नई पॉलिसीज आ रही है, हमारी स्कीम्स आ रही है, ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए सब प्रॉपर वर्क कर रहा है. तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि बस इंडिया जो ग्रो कर रहा है एग्रीकल्चर के बेस पे कर रहा है, या बस टेक्नोलॉजी के बेस पे कर रहा है, या कल्चर की वजह से कर रहा है, या बस पॉपुलेशन ज्यादा है तो लेबर बहुत चीप है. इट मींस ऐसा नहीं है, सारे जो एलिमेंट्स हैं ये एक साथ वर्क कर रहे हैं, साइमल्टेनियसली वर्क कर रहे हैं टू मेक इंडिया न्यू सेंटर ऑफ पावर. द वर्ड व्हिच यू विल बी यूजिंग इज द मल्टी डायमेंशनल. ठीक है गाइस, फिर फ्रॉम एन इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव टारगेटिंग द गोल ऑफ $5 ट्रिलियन. अभी इंडिया का जो था गोल क्या था, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी को इंक्रीज करना था. कॉम्पिटिटिव ह्यूज मार्केट, एक बहुत अच्छा मार्केट. पहले कैसे थे, हमारी क्लोज इकोनॉमी थी, 1991 के बाद हमने क्या की थी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज आई थी, तो उसमें क्या कंपटीशन आया. हमने सोचा ग्रोथ कब हो सकता है, जब मार्केट में क्या रहेगा, कंपटीशन रहेगा, प्राइवेटाइजेशन होगा, इंडस्ट्रीज के बीच में, कंपनीज के बीच में, इंडिविजुअल के बीच में. जब तक कंपटीशन नहीं होगा हमारी इकोनॉमी ग्रो नहीं कर सकती. और अगर हमें यहाँ पे इनको फ्रीडम देनी है, लिबरलाइजेशन देनी है, मार्केट को फ्री बनाना है, तो उसमें किसका इंटरफेरेंस खत्म करना पड़ता है, स्टेट का. जो स्टेट के बैरियर्स रहते हैं, जो उनकी रिस्ट्रिक्शंस रहती है, उससे फ्री करना पड़ता है मार्केट का. तो ये भी एक एम रहा है इंडिया का, टू मेक अ ओपन मार्केट, फ्री मार्केट फॉर द फास्ट ग्रोथ. ओके, yes, from an economic perspective targeting the goal of $5 trillion economy, a competitive huge market and ancient inclusive culture. एक कल्चर को बहुत इंपॉर्टेंस देनी है हमें. ये नहीं कि विद मॉडर्नाइजेशन, विद ग्लोबलाइजेशन वी आर फॉरगेटिंग आवर ओल्ड ट्रेडिशंस, कल्चर्स. ठीक है, हमें उन्हें नहीं बोलना है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे ग्रोथ के लिए. तो हमें उसे प्रोटेक्ट रखना है. जो हमारा रिच कल्चर है, हेरिटेज है हमारी, उनको हमें प्रोटेक्ट रखना है. ये सब एम्स रखे गए हैं टू बी अ न्यू सेंटर ऑफ पावर, बट इन पॉइंट्स को माइंड में रखते हुए. ठीक है, कि हमारा मार्केट ओपन होना चाहिए, वहां पे रिस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट की ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इकोनॉमी को हमें ग्रो करना है. जो हमारा टारगेट है $5 ट्रिलियन तक हमें पहुंचना है, बट उसके लिए हमें अपने कल्चर को भी प्रोटेक्ट करना है. ठीक है, विद 200 मिलियन पीपल ऑफ इंडियन डायस्पोरा स्प्रेडिंग अक्रॉस द वर्ल्ड, अराउंड 200 मिलियन पीपल, इंडिया जो इंडियंस हैं वो स्प्रेड हो रहे हैं अराउंड द वर्ल्ड. ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि हर कंट्री में यू विल फाइंड इंडियंस, और बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट में यू विल फाइंड इंडियंस जो बहुत इन्फ्लुएंस कर रहे हैं इंडिया को ग्लोबली. ठीक है, अब यूएस में जाओ तो बड़ी बड़ी सिलिकॉन वैली, जो बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी, जो उनकी इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर कंपनीज है, वहां पे ज्यादातर अच्छी पोजीशंस में कौन है, इंडियंस हैं. तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है कि इंडियंस भी इतने एडवांस हैं और उनका इन्फ्लुएंस अराउंड द वर्ल्ड हर कंट्री में है. ठीक है, तो अराउंड 200 मिलियन लोग हैं इंडिया के जो बाहर कंट्रीज में हैं. Okay, spreading across the globe impart distinct meaning that salience the India as a new center of power in the 21st century. तो ये सारे रीजंस मिलकर के बोल रहे हैं कि 21st सेंचुरी में जो एक इमर्जिंग पावर है, इंडिया उनमें से एक है. और रीजंस मैंने बता दिए, इट इज मल्टी डायमेंशनल, कोई एक डायमेंशनल नहीं है. अब फ्रॉम द स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव द मिलिट्री ऑफ इंडिया इज सेल्फ सफिशिएंट. अगर हम इंडिया की मिलिट्री की बात करें, डिफेंस की बात करें,
वो सेल्फ सफिशिएंट है, वो डिपेंडेंट नहीं है किसी और कंट्री पे फॉर इट्स टेक्नोलॉजी या फॉर सपोर्ट। हम अपने आप में ही बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं, टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस हो चुके हैं, हमारे पास सारे इक्विपमेंट्स हैं, वेपन्स हैं, न्यूक्लियर कंट्री हमें है। तो एक जो मिलिट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे कि हम अपनी सिक्योरिटी खुद रख सकते हैं या नहीं रख सकते, या वी आर डिपेंडेंट ऑन सम अदर सुपर पावर, या वी हैव टू मेक कि मुझे अलाई बनने की जरूरत है अपनी सिक्योरिटी के लिए। पहले अलाई इसलिए बनते थे ना, क्या क्या सपोर्ट मिलता था, सिक्योरिटी और इकोनॉमिक गेन्स, और क्या था, मिलिट्री प्रोटेक्शन ही सब था। बट हमको ऐसे किसी के अलाई बनने की जरूरत नहीं है, हम सेल्फ सफिशिएंट है। वर्ड क्या आएगा, सेल्फ सफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री, इकोनॉमी, एवरीथिंग, डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी सब हमारा ठीक है, ठीक है। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है हमारे, मेकिंग इट एंड न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर पावर तो हमें है ही। अब एक इंपॉर्टेंट चीज आती है जो हमने देखा है अंडर द एनडीए गवर्नमेंट 3 और 4 जो हमने पढ़ा था, उसमें स्कीम्स आई हैं कुछ मेक इन इंडिया, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है किस फील्ड में, टेक्नोलॉजी में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। तो बहुत सारे जो इन्वेस्टमेंट हुआ करते थे, प्रोग्राम्स हुआ करते थे, जो बाहर की कंट्रीज आकर के यहाँ पर हमारे लिए प्रोडक्शन किया करती थी, अब मोस्टली इंडियंस आर डूइंग देमसेल्फ। बस जहाँ पर बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है वहाँ पे हम फॉरेन हेल्प ले रहे हैं, या फॉरेन कोई एक्सपर्ट की टीम है उनको हम इंक्लूड कर रहे हैं अपने प्रोग्राम्स में, अदरवाइज वी आर डूइंग आवरसेल्फ। मेक इन इंडिया के अंदर वही था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमें क्या होना है, इंडिपेंडेंट होना है, वी डोंट हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन अदर पावर्स। तो मेक इन इंडिया याद रखेंगे, हमारे इंडिया का जो न्यू सेंटर ऑफ पावर है, एक मेक इन इंडिया जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है टू मेक इंडिया एज इमर्जिंग पावर। All these changes are making India an important center of power in the present world. तो ये सारी चीजें मिलकर के आप अपने से बहुत सारी चीजें ऐड कर सकते हो एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। If you are aware, if you are reading newspapers, you are watching news every day, so you'll find lot of things to write yourself। बस मैंने कुछ एक स्ट्रक्चर बता दिया है, मल्टी डायमेंशनल वे में हमें दिखाना है कि इंडिया का राइज हो रहा है इन ऑल द फील्ड्स। इंडिया खुद सेल्फ सफिशिएंट हो गई है इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री, टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एवरीथिंग, इकोनॉमी, ठीक है। तो इन चीजों को आप अपने से भी बहुत चीजें इसमें ऐड कर सकते हो, पर जो सीबीएसई ने कंटेंट दिया है वो इतना ही है, बट यू कैन ऐड अपना। बट ये जो कंटेंट बताया वो लिख लेना, पीडीएफ भेजी हुई है, सर्च करनी पड़ेगी आप लोगों को, या सीबीएसई की वेबसाइट पे जाओगे वहां पे आप लोग को मिल जाएंगे, ठीक है। विद दिस इंडिया का इतना ही है, ज्यादा नहीं है आपका, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, इजराइल। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, ये बहुत छोटी सी कंट्री है, नो वन कैन इमेजिन कि इजराइल कैन बी अ न्यू सेंटर ऑफ पावर which can challenge the power of United States। जो अभी सुपर पावर थी, सोल पावर थी, सिंगल पावर बचा था ना, यूनिपोलर वर्ल्ड हो गया था, एक ही पावर थी आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर इन 1991। सो जो ये यूएस है, इसकी हेजेमनी को कौन चैलेंज कर सकता है, कैन यू इमेजिन। ये छोटी सी कंट्री यहाँ पर है, इजिप्ट के ऊपर वाले पार्ट में आप देखेंगे ज्वाइन करता है इस रीजन को, जो वेस्टर्न एशिया है उसको, और इसको ज्वाइन करती है। ये लैंड एक ऐसे जैसे ब्रिज होता है, एक ब्रिज जैसा है जो स्ट्रेट में वर्टिकल, इसका इस टाइप का शेप है, कुछ इस टाइप से है, ठीक है। यहाँ पे इनके अलग अलग वो दिखाऊंगा मैं कहाँ पे पहले कौन सी जगह थी, ठीक है। तो यहाँ पे इस कंट्री है, यस, इजराइल। तो बहुत छोटी सी कंट्री है, अब हम देखेंगे कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया, ये इतना पावरफुल क्यों हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो ये वेस्टर्न कंट्री जितनी भी है, इंक्लूडिंग ये अफ्रीका का नॉर्थ पार्ट, ये जो कंट्री कौन सी है, मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्रीज, ठीक है। अरब कंट्रीज ये हैं, इसके साथ ये भी इंक्लूड हो जाती है। सारी पॉपुलेशन कौन सी है यहाँ बीच में, मिडिल ईस्ट में मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्रीज हैं, और उसके बीच में एक ही कंट्री ये है इजराइल। ये कैसी कंट्री है, जूइश कंट्री है, ज्यूज रहते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो हम देखिए, पहले इसका नाम था पैलेस्टीन था, आपका सिलेबस में नहीं, बस बता रहा हूँ। इजराइल को जो ये एरिया था पहले यहाँ पे पैलेस्टीन था, पैलेस्टीन लोग रहा करते थे, यहाँ पे रिवोल्ट हुए, वॉर हुए, और धीरे धीरे यहाँ पे जूइस ने इसको ओवर पावर कर लिया। और जूस ने फिर ऐसा क्या किया है कि वो इतने पावरफुल हो गए कि इतना छोटा सा नेशन पावर कर इसको चैलेंज कर सकता है, यूएस की हेजेमनी को। सो वी विल रीड अबाउट इट, थोड़ा सा उसकी डिटेल्स है, ठीक है। इजराइल हैज इमर्ज्ड एज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल नेशन इन द 21st सेंचुरी। अगर हम इसकी बात करते हैं कि ये कब इमर्ज हुआ है, तो 21st सेंचुरी में। इसका कोई प्रीवियस हिस्ट्री नहीं है कि इट वाज पावरफुल, या यहाँ पे कोई ऐसे लोग थे व्हिच कैन चैलेंज द पावर ऑफ यूएस। ये 21st सेंचुरी में ही इतना पावरफुल हुआ है, ठीक है। वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इतना पावरफुल क्यों होता जा रहा है, तो मेन रीजन क्या है, साइंस और टेक्नोलॉजी वाइज ये बहुत ज्यादा एडवांस्ड है। ये बहुत ज्यादा इन्वेंशंस और डिस्कवरी करते रहते हैं, बहुत ज्यादा अपने इकोनॉमी का पार्ट इन्वेंशंस में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट करते हैं, और वो बहुत सारे सक्सेसफुल भी होते हैं। तो साइंस और टेक्नोलॉजी फील्ड में ये बहुत आगे हैं यूएस से भी, ठीक है। डिफेंस, इंटेलिजेंस, बिसाइड्स इकोनॉमी, इकोनॉमी तो स्ट्रांग है ही, ऑफ कोर्स। अगर वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आगे, इट मींस
उनकी इकोनॉमी तो अच्छी है, उसके साथ साथ वो साइंस की न्यू एक्सपेरिमेंट्स, न्यू चीजें ट्राई करते हैं जिसकी वजह से वो सक्सेसफुल होते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ उनकी डिफेंस बहुत अच्छी हो गई। डिफेंस किससे अच्छी हो गई? क्योंकि उनके पास क्या है? टेक्नोलॉजी है। छोटी सी कंट्री है पर वो अपने को अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकते हैं और दे कैन इक्वली स्ट्रांगली वो अपोज कर सकते हैं किसी कोई अगर उन पर अटैक करता है तो उससे भी ज्यादा अटैक उस पर कर सकते हैं क्योंकि उसकी क्या है? टेक्नोलॉजी बहुत स्ट्रांग हो गई है, उनके ऐसे ऐसे वेपन्स हैं। ठीक है, इकोनॉमी तो अच्छी है। सिचुएटेड इन द मिडिल ऑफ द बर्निंग पॉलिटिक्स ऑफ वेस्ट एशियन कंट्रीज, इसके लिए क्या वर्ड यूज किया हुआ है? उसकी जो सिचुएशन है, जो लोकेशन है वो कहां पर है? इन द बर्निंग पॉलिटिक्स ऑफ वेस्टर्न एशियन कंट्रीज, जितनी भी वेस्ट एशियन कंट्रीज है इंक्लूडिंग ये भी जो मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्रीज, इनके बिल्कुल बीच में है। इनके बीच में सर्वाइव करना एक ऐसी कंट्री जो जूइश है, जो अपोज टू इस्लाम है, मतलब जो इनके अगेंस्ट है, यहाँ से उन्होंने मुस्लिम्स को ही हराया था, यहाँ से हटाया था, तो इनसे बीच में सर्वाइव करना और उसके बाद इतना पावरफुल बनना एक बहुत डिफिकल्ट टास्क था, बट दे हैव डन इट। ओके, Israel has reached to the new heights of global political standing by virtue of its indomitable defense। अब वो वर्ल्ड में इतना इन्फ्लुएंस उनका कैसे फैला है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। डिफेंस उनकी बहुत स्ट्रांग है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस, नए नए इनोवेशंस करते रहते हैं, वो नए कुछ ट्राई करते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत अच्छा चल रहा है वहाँ पे टेक्नोलॉजी की वजह से, और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। तो मैंने इनका मल्टी डायमेंशनल एग्रीकल्चर और ये सब अच्छा क्यों चल रहा है? क्योंकि वो सबसे आगे किस चीज में? साइंस और टेक्नोलॉजी में। साइंस और टेक्नोलॉजी में अच्छा है, मतलब उनका इकोनॉमी ऑलरेडी अच्छा है, इसीलिए वो इन्वेस्टमेंट कहाँ पे कर रहे हैं? ज्यादा अपना साइंस और टेक्नोलॉजी में, न्यू इनोवेशंस कर रहे हैं, न्यू टेक्नोलॉजी को ला रहे हैं। उसकी वजह से क्या उनकी इंडस्ट्रीज ग्रो कर रही हैं। एग्रीकल्चर में न्यू मशीनरी आएगी, न्यू टेक्नोलॉजी आएगी, तो एग्रीकल्चर क्या होगा? बूस्ट होगा या नहीं होगा? तो बूस्ट होगा। तो मल्टी डायमेंशनल उनका ग्रोथ तो हो रहा है, पर वो किसकी वजह से हो रहा है? साइंस और टेक्नोलॉजी की वजह से, न्यू न्यू इनोवेशंस की वजह से। तो सारी फील्ड्स में वो ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, तो जबकि इनकी जो लोकेशन है वो बहुत डिफिकल्ट है। दे आर सिचुएटेड एट द मिडिल ईस्ट। बर्निंग पॉलिटिक्स इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उसकी सारी तरह उसके क्या है? एक टाइप से बोल सकते हैं एनिमीज हैं, सारी मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्रीज और बीच में एक जूइश कंट्री है छोटी सी। ठीक है, जहां पे जूस रहते हैं। Sustaining against adversity in the principle with small Jewish nation वही लिखा है। Israel is placed in the contemporary global politics in general and Arab dominated West Asian politics in particular। अगर हम बात करते हैं इसकी पोजीशन की, Israel is placed in the contemporary global politics। ग्लोबली तो हम उसको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, पर रियल में अगर उसकी पोजीशन देखी जाए तो बहुत डिफिकल्ट पोजीशन है जहां पर वो सिचुएटेड है। ठीक है, इट इज लिविंग अंडर द वेस्टर्न वर्ल्ड जो उसके अगेंस्ट है सारा। ठीक है, इतना ही है इसके बारे में, इजराइल के बारे में। बाकी जब इसकी ज्यादा इंफॉर्मेशन किसमें इंडिया फॉरेन पॉलिसी है, उसमें न्यू टॉपिक्स ऐड हुई हैं, उसमें इंडिया चाइना का रिलेशन पढ़ना है। अभी तो बस हमने चाइनीज इकोनॉमी राइज करते हुए देखा है, हम बस इजराइल देख रहे हैं कि इंपॉर्टेंट सेंटर क्यों है, पर इसके बीच में हम ये देखेंगे इंडिया और इजराइल की रिलेशनशिप कैसा है, कब इस्टेब्लिश हुआ, कब इनकी यहाँ पर एजेंसीज बनी इंडिया में पहली बार। ठीक है, तो वो सारी डिटेल्स हम उस चैप्टर में देखेंगे, फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया। इसमें अभी इतना ही है। Blue